بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگاری لشکر کا سالار ابھی لشکر کو پسپا ہونے کا حکم ہی دے رہا تھا کہ ان کی پشت پر خلیل شلبی حملہ آور ہو گیا تھا۔ طوفان پر آئے اور بپھرے ہوئے دریاؤں کی طرح خلیل شلبی نے اپنے سامنے جنگاریوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جنگاری جو ماضی میں خونخوار بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کے خون کے عادی ہو چکے تھے، وہ وقت کے انگنت لمحوں کی بھیگی آنکھوں کے اندر اپنے لیے خون ہی خون دیکھ رہے تھے۔ خلیل شلبی کسی بزرگ قاضی کے ضمیر اور کسی انصاف پسند محتسب کی طرح ایستادہ صداقتوں کا امین بن کر جنگاریوں سے ان کے ماضی کا حساب وصول کر رہا تھا۔ پتھروں کی مار اور اپنی پشت پر خلیل شلبی کے طوفانی حملوں کی خونخوار یلغار سے بچنے کے لیے جنگاری لشکر کے سالار نے اپنے لشکر کو آگے کی طرف بھاگ نکلنے کا حکم دے دیا تھا۔ خلیل شلبی جنگاریوں کو اپنے سامنے مارتا کاٹتا ہوا ان کے تعاقب میں تھا، جبکہ کوہستان کے اوپر خانوف بھی اپنے لشکر کو جنگاریوں کے ساتھ آگے آگے بڑھا رہا تھا۔ دوسری طرف کالمکوں کا لشکر بھی درے میں داخل ہو کر اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں ان کے پہلے لشکر کی لاشیں دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ کالمک ابھی اپنے مرنے والے ساتھیوں کی لاشوں کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ ان کے سامنے کی طرف سے جنگاری لشکر بھاگتا ہوا آ گیا۔ جنگاریوں کی اس اچانک آمد پر کالمک بوکھلا گئے اور گھبراہٹ میں اس کے لشکر کے سالار نے کالمکوں کو جنگاریوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ جنگاری اور کالمک ایک دوسرے پر انتہائی خونخواری سے حملہ آور ہوئے اور ایک دوسرے کا خون کرنے لگے، لیکن جلد ہی جنگاریوں اور کالمکوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اتنی دیر تک کوہستان کے اوپر ہی اوپر خانوف بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے جنگاری اور کالمک دونوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کرا دی تھی۔ جنگاریوں نے جب کالمکوں کو سمجھایا کہ کوہستان کے اوپر سے اور ان کی پشت پر مسلمان حملہ آور ہو چکے ہیں اور ان سے بچنے کی خاطر آگے آگے بھاگ رہے ہیں، تو کالمک اور زیادہ حواس باختہ ہو گئے اور جنگاریوں سے آگے آگے وہ بھی بلک آتے ہوئے درے کے اندر شمال مغرب کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ خلیل شلبی اور خانف دونوں ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کرتے رہے، اور جب دونوں متحدہ لشکر اس خونی درے سے جان چھڑا کر کالمک قبائل کی بستیوں کی طرف بکھر گئے تو خلیل شلبی اور خانوف جنگ میں ہاتھ لگنے والے گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے اس طرف جا رہے تھے جہاں وہ غنیمت کا مال جمع کر چکے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ خلیل شلبی اس وادی میں داخل ہوا جس کے اندر کالمکوں اور جنگاریوں سے حاصل ہونے والا مال جمع کیا گیا تھا۔ وہاں خلیل شلبی نے اپنے لشکریوں کو مالی غنیمت دشمن سے ہاتھ آنے والے جانوروں پر لاد کر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ باشکیری جوان بڑی تیزی سے حرکت میں آئے اور غنیمت کے مال کو گھوڑوں، خچروں اور برفانی بیلوں پر لادنے لگے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو برفانی بکریاں ہاتھ لگی تھی وہ ایک جگہ جمع کرنے لگے تھے۔ اس وقت خانوف خلیل شلبی کے قریب آیا اور انتہائی عقیدت مندی میں اس نے کہا، اے امیر، منزلتا شہر سے اس طرف کوچ کرتے وقت میرے ذہن میں بار بار یہ وسوسے آتے تھے کہ ہم صرف 20,000 کے ایک معمولی لشکر کے ساتھ کیوں کر اور کیسے کالمکوں اور جنگاریوں کا مقابلہ کر سکیں گے جو ماضی میں حسرات الارض کی طرح لاکھوں کی تعداد میں مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہو کر آگ اور خون کا کھیل کھیلتے رہے ہیں۔ ہم قازقستان کے مسلمانوں میں ان کالمکوں اور جنگاریوں کی ایسی خوف اور دہشت تھی کہ بڑے بڑے سورما ان کے سامنے آتے ہوئے جی چھڑایا کرتے تھے۔ خلیل شلبی نے غور سے خانوف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم دیکھتے ہو خانوف کہ میری اور تمہاری سرکردگی میں کام کرنے والے باشکیریوں نے کالمکوں اور جنگاریوں کے سامنے کسی خوف اور دہشت کا اظہار نہیں کیا۔ خانوف نے کہا، اے امیر، یہ سب کچھ آپ کی ان کے اندر موجودگی اور آپ کی تربیت کا باعث ہے۔ باشکیریوں کو کالمکوں اور جنگاریوں سے ٹکرا کر آپ نے ایک غیر معمولی کام سر انجام دیا ہے۔ اب دوسرے مسلمان بھی ان دونوں وحشی قبائل کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی جرت کر لیں گے۔ خانوف جب خاموش ہوا تو خلیل شلبی کے پاس کھڑے اسماعیل بے نے کہا، اب وہ دن دور نہیں جب صرف کالمک اور جنگاری قبائل ہی نہیں بلکہ روسیوں کی دہشت پسند تنظیمیں سلد فلز اور قاسق کے خونی بیڑی بھی مسلمان علاقوں کی طرف بڑھتے ہوئے خوفزدہ ہوں گے۔ خلیل شلبی نے خانوف اور اسماعیل بے دونوں میں سے کسی کی بات کا جواب نہ دیا، اس لیے کہ باشکیری سارا مالی غنیمت جانوروں پر لاد کر وہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر خلیل شلبی کے حکم پر لشکر کے اندر 2 نکارے بجے اور لشکر وہاں سے منزلتا شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک روز خلیل شلبی منزلتا شہر سے باہر اپنی لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ شریف منازف کو اس کے آنے کی پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا خلیل شلبی جب وہاں پہنچا تو شریف منازف عمائدین شہر کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جب سب لوگ خلیل شلبی، خانوف اور اسماعیل بے کے ساتھ مصافہ کر چکے تو شریف منازف کے ساتھ آئے ہوئے ایک بڑے بوڑھے نے خلیل شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں ایک طویل عرصے سے اس شہر منزلتا میں مقیم ہوں۔ میں نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں،
बहुत से हाकिमों को मंजलता शहर में आते माजूल होते या मौत का लुक्म अजल बनते देखा है। मैंने अनगिनत दफ़ा वैशी कालमक और जिंगारी कबाइल को मुसलमान इलाकों की तरफ हमला आवर होते देखा। मंजलता शहर के शुमाल में मुसलमानों की बेशुमार बस्तियां हुआ करती थी जो उन खूनख्वार बुत कबाइल की वजह से तबाह हो गई हैं और उन बस्तियों के रहने वाले जनूब के महफूज मकामात की तरफ हिजरत कर गए हैं। ऐ अमीर, कोई मुसलमान जर्नेल आज तक कालमकों और जिंगारियों के अंदर इस तरह घुसकर हमला आवर नहीं हुआ जिस तरह आपने उनके अंदर जाकर उनकी बस्तियों पर यलगार की है। बखुदा ये एक बहुत बड़ा मार्का है। फिर उस बूढ़े ने माल गनीमत के उस ढेर को जो खलील शल्बी के सिपाही एक तरफ लगा चुके थे इशारा करते हुए कहा, मंजलता शहर ने इस कदर माली गनीमत कभी भी अपनी फसीलों से बाहर ढेर होते न देखा होगा। फिर वो बूढ़ा आगे बढ़ा और मुसाफा करने के अंदाज में उसने खलील शल्बी के दोनों हाथों को एक अकीदत भरा बोसा देते हुए कहा, ऐ अमीर, कालमकों और जिंगारियों के मुकाबले में आपने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। उस बूढ़े के खामोश होने पर खलील शल्बी ने माली गनीमत के लगे ढेरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस सारे माल के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा उन लश्करियों के लिए जिन्होंने इस जंग में मेरे साथ शिरकत की है, दूसरा हिस्सा मंजलता के शहरियों और उनकी हिफाजत के लिए मामूल लश्करियों के लिए, तीसरा हिस्सा जंगी अखराजात बर्दाश्त करने के लिए अपने मरकजी शहर काजान की तरफ जाएगा। माली गनीमत में जिस कदर घोड़े हैं ये भी काजान शहर जाएंगे। इनसे मौजूदा लश्कर की हालत मुस्तहकम और उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कालमक और जिंगारी बस्तियों से जिस कदर याक यानी बर्फानी बैल, रंदीर, बर्फानी हिरन और बकरियां हाथ लगी हैं उनके भी 3 हिस्से किए जाएं और ये तीनों हिस्से काजान, मंजलता, ऊफा शहर और उनके गिरद नवाह में रहने वाले उन गरीबों और मसाकीन में तकसीम कर दिए जाएंगे जो भूख और नम का शिकार हैं। शरीफ मनाजोफ को हिदायत देने के बाद खलील शल्बी ने खानौफ की तरफ देखते हुए कहा, खानौफ मेरे अजीज भाई, इसी वक्त अपने लश्कर में से 2 सवार काजान की तरफ रवाना करो जो वहाँ नामक सरी और काजान के शहरियों को कालमकों और जंगारियों के मुकाबले में उन्हें इस फतह की खुशखबरी सुनाएं। मैं 2-4 रोज तक मंजलता शहर में क़याम करके इसके इस्तेहकाम और दिफाई इंतजामात का जायजा लूंगा। खानौफ उसी वक्त हरकत में आया और 2 लश्करियों को फतह की खुशखबरी देकर उसने काजान शहर की तरफ रवाना कर दिया था। फिर खलील शल्बी सबके साथ मिलकर माली गनीमत की तकसीम करने लगा था। काजान शहर के मगरबी बुर्ज पर नकारे बजने लगे थे। नामक सरी भागता हुआ हवेली से बाहर निकला और अपने एक मुहाफिज को उसने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रवाना कर दिया। ओनीस, सैमन, नार्सिस और मार्गन भी हवेली से निकलकर नामक सरी के पास आ खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद नामक सरी का बेजा हुआ मुहाफिज भागता हुआ आया और नामक सरी को मुखातब करते हुए उसने कहा, ऐ आका, अमीर खलील शल्बी की तरफ से 2 सवार शहर में दाखिल हुए हैं। वो कालमकों और जंगारियों के मुकाबले में अमीर की फतह की खुशखबरी लेकर आए हैं। वो आपसे मिलने के लिए इधर ही आ रहे हैं। नामक सरी खलील शल्बी की इस फतह पर सजदा शुक्र अदा करने की खातिर वहाँ नंगी जमीन पर सरबसजुद हो गया था। खलील शल्बी की फतह की खबर सुनकर हसीन ओनीस की हालत अजीब हो गई थी। नामक सरी जब सजदा अदा करके उठा तो उसने देखा 2 सवार शहर के जनूबी दरवाजे की जानब से उसकी तरफ आ रहे थे। करीब आकर वो सवार उतरे और सबके साथ मुसाफा करने के बाद उनमें से एक ने नामक सरी को मुखातब करते हुए कहा, सईदी, हम अमीर खलील शल्बी की तरफ से ये खुशखबरी लेकर आए हैं कि उन्होंने वैशी कालमक और जंगारी कबाइल को बदतरीन शिकस्त दी है। हम दोनों भी उनके साथ उन मुआरकों में शामिल थे। बखुदा हमने कभी कोई ऐसा जर्नेल नहीं देखा जो यूं बेखौफी के साथ कालमकों और जंगारियों के अंदर घुसकर उनके जिस्मों और रूहों को लहूलुहान करके रख दे। उस आने वाले कासिद की गुफ्तगू सुनकर नामक सरी ने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहा, मेरे अजीजों, मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलकर दीवान खाने में चलकर बैठो। मैं अपने अमीर की कारगुजारी तफसील से सुनना पसंद करूंगा। नामक सरी सबको साथ लेकर खलील शल्बी के दीवान खाने में आकर बैठा। फिर वो दोनों कासद तफसील के साथ कालमकों और जंगारियों के खिलाफ अमीर शल्बी की कारगुजारी सुना रहे थे। जब वो सारे हालात कह चुके तो नामक सरी ने कहा, मेरा दिल कहता था कि अमीर कालमकों और जंगारियों की ऐसी ही हालत करेंगे, क्योंकि दागिस्तान में वो इससे भी मुश्किल हालात में रूसियों के साथ बड़ी सख्ती और महारत से निमटते रहे हैं। क्योंकि रूसी पहले हर रोज दागिस्तान के इलाकों पर धावा बोला करते थे, लेकिन अमीर शल्बी ने उनके इलाकों में घुसकर उनकी ऐसी सरकूबी की है कि कुछ अरसा से वो दागिस्तान की तरफ रुख करने की जुर्रत नहीं कर रहे। नामक सरी चंद सानियों को रुका, फिर उन दोनों कासिदों को मुखातब करते हुए उसने फिर पूछा, क्या तुम दोनों को कोई अंदाजा है कि अमीर खलील शल्बी कब तक यहाँ काजान शहर पहुँच जाएंगे?
एक कासिद ने कहा, उम्मीद है वो 2-4 रोज तक काजान पहुंच जाएंगे। इस दौरान वो मंजिलता में रुककर वहां के दिफाई उमूर का जायजा लेंगे। नामक सरी उठ खड़ा हुआ और कहा, आओ मेरे साथ, मेहमान खाने के बजाय तुम दोनों मेरे साथ खाना खाओगे। फिर नामक सरी ने साइमन की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग भी आएं, आज शाम का खाना मेरे साथ खाएं। साइमन, नार्सिस और मार्गन उठ खड़े हुए। उनीस सबके बाद में उठी और अपने बाप साइमन की तरफ देखते हुए उसने कहा, ऐ मेरे बाप, आप लोग चलें, मैं अमीर शल्बी के कमरे की सफाई करके आती हूँ। सब लोग नामक सरी के साथ हो लिए। उनीस बड़ी चाहत और लगन के साथ अमीर शल्बी के दोनों कमरों और दीवान खाने की सफाई करने लगी थी। इस समय उस हसीन और पुरकशिश लड़की के चेहरे पर ख्वाबजार निशात मस्ती जैसा इत्मीनान और आरजुओं के सुनहरे मौसम जैसा इत्मीनान था। अपने लश्कर के साथ मंजलता से काजान की तरफ कूच करने के लिए खलील शल्बी मंजलता शहर से निकला। उसने एक खूब मजबूत और कद आवर बाशकीरी जवान का हाथ अपने हाथ में ले रखा था और उसके साथ शरीफ मनाजोफ, खानोफ और मंजलता शहर के अमायदीन थे। फिर खलील शल्बी ने जिस बाशकीरी जवान का हाथ थाम रखा था उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने शरीफ मनाजोफ से पूछा, शरीफ मनाजोफ, क्या आप इस जवान को जानते हैं? शरीफ मनाजोफ ने कहा, ए अमीर, मैं इसे खूब जानता हूँ। इसका नाम दोलगर्द है और ये उस 10,000 के लश्कर में शामिल था जो मैंने आपके इस हालिया मुहिम के लिए मंजलता से मुहैया किया था। ए अमीर, मैं इस जवान को उस 10,000 लश्कर का सालार बनाना चाहता था, लेकिन आपकी रजामंदी के बगैर मैं ऐसा न करना चाहता था। ए अमीर, बाशकीरी जवानों में ये सबसे ज्यादा पुरजोश और जंगी सलाहियत रखने वाला सरगर्म नौजवान है। खलील शल्बी ने कहा, कालमुकों और जंगारियों के खिलाफ हालिया मुहिम में इस दोलगर्द की कारगुजारी मैं देख चुका हूँ। मेरी इस पर निगाह रही है और उसने मुझे बहुत मुतासर किया है। शरीफ मनाजोफ मेरे बुजुर्ग, मैं दोलगर्द को मंजलता में आपका नायब मुकर्रर करता हूँ। आपके बाद यही लश्कर का सालार और शहर के उमूर की देखभाल करने वाला होगा। आप अहले मंजलता को भी इसके नायब मुकर्रर किए जाने से आगाह कर दें। मैं वक्तन फवक्तन आकर शहर के दिफाई उमूर का जायजा लेता रहूंगा। इस मौका पर दोलगर्द ने शुक्रगुजारी और अकीदतमंदी से खलील शल्बी की तरफ देखते हुए कहा, ऐ अमीर, आपने जो इज्जत मुझे बख्शी है उसमें इंशाल्लाह मैं आपके मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। खलील शल्बी ने बड़ी शफकत से दोलगर्द का शाना तपतपाते हुए कहा, मंजलता शहर का नायब सालार मुकर्रर किया जाना तुम पर कोई एहसान नहीं है। दोलगर्द, तुमने अपने आप को इसका हकदार साबित किया है और तुम इसके अहल हो। मंजलता शहर के अमायदीन में से एक ने पूछा, ए अमीर, आप फिर कब मंजलता शहर की तरफ आएंगे? हमें कालमुकों और जंगारियों की तरफ से खतरा है, क्योंकि वो अपने आप पर होने वाले हमलों का बहुत जल्द इंतकाम लेने के आदी हैं। उन दोनों खूनख्वार कबाइल के जवान लाखों पर मुश्तमिल है और सब बेहतरीन जंगजू हैं। खलील शल्बी ने कहा, आप लोग उनकी तरफ से ज्यादा फिक्रमंद न हो। मंजलता की हिफाजत के लिए अब यहाँ शरीफ मनाजोफ और दोलगर्द हैं और उनके साथ बेहतरीन तरबियत याफ्ता बाशकीरी लश्कर है। मैं चंद रोज काजान में क़याम करने के बाद अपने जनूबी शहर ऊफा की तरफ जाऊंगा, वहाँ के दिफा का जायजा लूंगा और फिर दोबारा मंजलता की तरफ आ जाऊंगा। खलील शल्बी जरा रुका, फिर एक सरगोशी की अंदाज में उसने शरीफ मनाजोफ से कहा, मैं फारिग होकर बहुत जल्द आप और सुसान को काजान में बुलाऊंगा ताकि नामक सरी और सुसान की शादी कर दी जाए। शरीफ मनाजोफ और खानोफ के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। खलील शल्बी चलता चलता वहां आ गया था जहां उसका लश्कर खैमाजान था और आते ही उसने वहां से रवानगी के नकारे बजवा दिए थे। थोड़ी देर बाद खलील शल्बी वहां से कूच कर रहा था। उसके साथ काजान के हिस्से का माल गनीमत और वो जानवर भी थे जो काजान और ऊफा के मसाकिन में तकसीम किए जाने थे। खलील शल्बी अभी अपने लश्कर के साथ मंजलता शहर से 20 मील दूर गया होगा कि पीछे से 3 सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए आए। जब वो लश्कर के अंदर से गुजरकर अगले हिस्से में खलील शल्बी के पास आए तो वो उन्हें पहचान गया। वो कालमुकों और जंगारियों की मुहिम में उसके साथ शामिल थे। उन्हें परेशान और बदहवास देखकर खलील शल्बी उनसे कुछ पूछने ही वाला था कि उनमें से एक ने उसे मुखातब करते हुए खुद ही कहा, ऐ अमीर, इस वक्त मंजलता शहर ही नहीं आपका लश्कर भी खतरे में है। कालमक और जंगारी कबाइल के लाखों जंगजुओं ने मंजलता शहर पर दावा बोल दिया है। उन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया है और फसील पलांग कर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने लश्कर को भी बचाने की कोशिश करें। कालमुकों और जंगारियों का एक लश्कर आपके ताक़ुब में भी इधर आ रहा है। उस लश्कर की तादाद किसी तौर भी 30,000 से कम न होगी और वो यहाँ से 5 मील दूर बड़ी तेजी से इस तरफ बढ़ा चला आ रहा है। कालमक और जंगारी आपसे अपनी गुज़श्ता नाकामियों का इंतकाम लेना चाहते हैं।
खलील शल्बी ने फौरन अपने लश्कर को रोक दिया और चिल्ला चिल्ला कर कहा, खानौफ खानौफ, लश्कर को बाएं तरफ की चट्टानों के अंदर ले चलो। खानौफ ने खलील शल्बी का ये हुक्म पूरे लश्कर में पहुंचा दिया और लश्कर बड़ी तेजी से हरकत में आकर दाएं तरफ की चट्टानों के अंदर जा घुसा। वहां चट्टानों के अंदर खलील शल्बी ने फिर खानौफ को मुखातब करते हुए कहा, खानौफ, तुम फौरन अपने तीर अंदाजों को चट्टानों के अंदर खूब फैला कर बिठा दो और उन्हें कहो कि तीर अंदाजी के लिए मेरी तरफ से नकारे बजने का इंतजार करें। खानौफ जब अपने तीर अंदाजों को गात में बिठाने के लिए चला गया तो खलील शल्बी ने अपने करीब खड़े इस्माइल बे को मुखातब करते हुए कहा, इस्माइल बे, मेरा काल्मकों और जंगारियों से ये उलझाव शायद तूल पकड़ जाए, इसलिए कि ताक़ुब करने वाले लश्कर से निमट कर मुझे मंजरता की मदद को जाना होगा, जिसका लाखों काल्मकों और जंगारियों ने मुहासरा कर रखा है। तुम 500 उन जवानों के साथ जो माली गनीमत और जानवर लेकर जा रहे हैं, काजान की तरफ रवाना हो जाओ और वहां जाकर नामक सरी को नए पेश आने वाले हालात से आगाह करो, क्योंकि अहले काजान मेरी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। इस्माइल बे, मैं तुम्हें अपने आप से अलहदा न करता, लेकिन पिछले चंद योम से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम अभी माली गनीमत की देखभाल करने वाले उन 500 जवानों की तरफ चले जाओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसके बाद शायद तुमसे गुफ्तगू करने के लिए मुझे वक्त न मिले। इस्माइल फौरन अपने घोड़े को हाँक कर वहां से चला गया था। हालात की नज़ाकत को देखते हुए उसने जवाब में एक लफ्ज़ तक न कहा था। इस्माइल बे के जाने के बाद खलील शल्बी खुद भी हरकत में आया और खानौफ के साथ मिलकर उसने अपने पूरे लश्कर को गात में बिठा दिया था। इतनी देर तक शुमाल की तरफ से ताक़ुब करने वाले काल्मक और जंगारी का लश्कर भी आ गया। खलील शल्बी ने गात में रहकर उनका जायजा लिया। वो 30,000 से भी ज्यादा लगते थे और अपने घोड़ों को मारते भगाते और अपने मुंह से वहशी और खूनख्वार आवाजें निकालते हुए आंधी और तूफान की तरह आ रहे थे। जब काल्मक और जंगारी शोर करते हुए उन चट्टानों के सामने आए जहां खलील शल्बी ने अपने लश्कर को गात में बिठाया हुआ था, तो खलील शल्बी के हुक्म पर नकारे बजाए गए और उन नकारों के जवाब में उसके लश्करियों ने मूसलाधार बारिश और तेजी से बरसते ओलों की तरह काल्मक और जंगारियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए थे। काल्मक और जंगारियों के लश्कर में एक कोहराम मच गया था। मुसलमानों की तरफ से तीर अंदाजी के बायस उनके अनगिनत जवान अपने घोड़ों से सावन बादों के पतंगों की तरह गिरने लगे थे। काल्मकों और जंगारियों में एक अफरा तफरी मच गई थी। उनके सालारों ने जब देखा कि उनका आधे से ज्यादा लश्कर इस तीर अंदाजी के बायस खत्म हो गया है, तो उन्होंने फौरन अपने लश्कर को पसपा होकर मंजिल तक की तरफ वापस जाने का हुक्म दे दिया था। काल्मक और जंगारी जिस रफ्तार से जनूब की तरफ से आए थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ शुमाल की तरफ वापस जाना चाहते थे कि खलील शल्बी ने चट्टानों से निकलकर उनकी पुश्त पर हमला कर दिया, जबकि इस्माइल बे 500 जवानों के साथ गनीमत का माल और जानवर लेकर काजान की तरफ कूच कर गया था।